Hello everyone, welcome to Elifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about the definite integrals and some properties based upon definite integral. Today we are going to start a very important topic which is called beta and gamma function. तो बीटा एंड गामा फंक्शंस पहले हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं. देखो बीटा फंक्शन बीटा mn is written like this: integration limit 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the whole power n minus 1. x सिंगल है और दूसरा 1 minus x, इन दोनों की पावर m minus 1 n minus 1 हो, then this type of integral is called beta function. And what is gamma function? Gamma function is written in this way: limit 0 to infinity, integration की limit 0 to infinity, e to the power minus x and x to the power n minus 1 dx. These two integrals are called improper integrals. Improper integrals, we will discuss this chapter separately in the calculus itself, but right now बस इतना समझ लीजिए, either the limit is infinity or the function becomes infinity after substituting any one of the limit. या तो फंक्शन की लिमिट इंफिनिटी हो जैसे यहां पर है, या फिर लिमिट रखने पर फंक्शन इंफिनिटी हो जाए. क्या कहा? फंक्शन में लिमिट रखने से इंफिनिटी हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर x की ये पावर नेगेटिव हो जाए, the power of x negative, then this x will be in the denominator, 1 upon x आ जाएगा कुछ ऐसे, और उस 1 upon x में x को 0 रख दिया तो 1 upon 0 will become infinity. So the improper integral are those integral in which either the limit is directly infinity like gamma function, this is called type 1, and if the limits are not infinity, then function becomes infinity after substituting any one of the limit. तो आप इसमें अगर x की पावर नेगेटिव देखेंगे तो 1 upon x हो जाएगा, 1 upon 0 that will become infinity. So this kind of improper integrals will be of two types. या तो infinity लिमिट हो या फंक्शन infinity हो जाए. हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ जस्ट इनको दोनों फॉर्मूले को आप समझ लीजिए कि improper integral है. बीटा फंक्शन को हम कहते हैं फर्स्ट यूलरियंस इंटीग्रल. ठीक है, पहला फर्स्ट यूलरियंस इंटीग्रल, और इसको हम बीटा गामा फंक्शन को कहते हैं सेकंड यूलरियंस इंटीग्रल. फर्स्ट यूलरियन कह लो या ऑयलर्स या यूलरियंस इंटीग्रल, और सेकंड यूलरियंस इंटीग्रल. इनका नाम है, ये ऑयलर्स ने निकाले थे या स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल उसने बना के दिए थे. सो इन द अपकमिंग 2-3 लेक्चर्स वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, सम कॉन्सेप्ट्स बेस्ड अपॉन दीज टू इंटीग्रल्स, क्योंकि ये गेट एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में या डिफरेंट लेक्चरर्स के एग्जाम में बहुत आते हैं. तो आप इस पूरे के पूरे दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझिएगा. राइट नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस बीटा फंक्शन फर्स्ट. तो हमने टॉपिक नंबर 2 पढ़ लिया है, टॉपिक 1 पढ़ लिया है डेफिनिट इंटीग्रल, एंड टॉपिक नंबर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस बीटा फंक्शन. बीटा mn, देखो लिखते हैं इसको ऐसे, बीटा b या b लिख दो या बीटा लिख दो, m, n. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा फंक्शन. सो द इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप, द इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power whole power n minus 1. X to the power m minus 1 and 1 minus x to the whole power n minus 1 is called beta function, where m and n both are positive. Okay, so it is defined as beta function. और लिखते कैसे इसको? ऐसे बीटा m comma n, और sometimes we write it like b comma, ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभी हम b बना देंगे इसको, b m comma n like this. So बीटा mn और b mn, बट इसको पढ़ेंगे हम बीटा mn. 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1. ध्यान रहे x ये सिंगल है, देखो सिंगल x की पावर, और 1 minus x भी यहां पर सिंगल होना चाहिए. मींस बोथ शुड बी लीनियर फंक्शंस ऑफ x के लीनियर फंक्शन होने चाहिए दोनों के दो. सो इस तरह से x की होल पावर और 1 minus x की होल पावर हो, देन इस वाले को कंपेयर करेंगे m minus 1 से और इसे कंपेयर करेंगे n minus 1 से, देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ m, n. Okay, so here m and n are called parameters of beta functions, and this integral is also known as first Eulerian's integral.
ठीक है, तो पहला ऑयलरियन इंटीग्रल इसको हम कहते हैं। तो ये इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, डायरेक्टली x टू द पावर, x मतलब सिंगल, और 1 माइनस एक्स टू द होल पावर, एक को m-1 एक को n-1 कहना है, लिमिट शुड बी 0 to 1, फिक्स है। ओके, तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके एक प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। पहली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब द वैल्यू ऑफ बीटा mn विल बी इक्वल टू बीटा nm। अब mn क्यों कह रहे हैं, ध्यान देना, अगर x की पावर m है और 1 माइनस एक्स की नेक्स्ट 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है, तो इसका नाम है बीटा m और n। और अगर ये n इधर आ गया, m इधर पहुंच गया, तो नाम हो जाएगा बीटा nm। यानी x की जो पावर है ना पहले, वो पहले लिखी जाएगी यहां पर m, तो x की पावर में, n 1 माइनस एक्स की पावर में। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री वी विल शो दैट बोथ आर सेम। देखो यहां पर वी हैव बीटा mn 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx। दिस इज बीटा फंक्शन, मतलब m जो है वो x की पावर में होगा और n जो है वो 1 माइनस एक्स की पावर में होगा। उसके बाद क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, इस 1 माइनस एक्स को, इसे 1 माइनस एक्स को, इसे t मान लो या y मान लो या z मान लो, कुछ भी, लाइक दिस 1 माइनस एक्स इक्वल टू y, सो x इक्वल टू 1 माइनस y एंड dx इक्वल टू माइनस dy। समझ गए होंगे आप। लिमिट भी चेक करो, इफ वी पुट x इक्वल टू 0 हियर, तो 1 माइनस 0 y की वैल्यू 1 हो जाएगी। इफ वी पुट x इक्वल टू 1 हियर, 1 माइनस 1 y विल बी 0। सो जो लिमिट है ना 0 से 1, वो क्या बन जाएगी, 1 से 0। तो देखो लेफ्ट साइड बीटा mn एज इट इज, राइट साइड विल बिकम, देखो लिमिट 0 to 1 का 1 to 0 हो गया, ये x की वैल्यू, x की जगह 1 माइनस वाई, ये 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस एक्स दिस वाई, dx की जगह माइनस dy। अब देखो ध्यान देना, ये माइनस बाहर आएगा, लेकिन एक प्रॉपर्टी है, अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया तो एक और माइनस आते हैं ना, उसकी वजह से प्लस हो गया। ये दिख रहा है प्लस कैसे हुआ, बताओ, प्लस समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। दिस प्लस इज फॉर्म्ड when there is a negative sign, जो बाहर आ जाएगा, and there will also one negative by interchanging the limits। अगर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे 1 से 0 का, 0 से 1 बनाएंगे तो एक और माइनस आएगा, that will become प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है बीटा, मतलब देखो फर्स्ट वाले का m लिखा था तो इसलिए हमने इसको m पहले, और 1 माइनस एक्स की होल पावर n-1 तो फिर इसे बाद में लिखा। अब जरा ध्यान दो, ये सिंगल वेरिएबल x की जगह y हो गया, उसकी पावर क्या लिखी n, और इसका 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो इसकी पावर क्या लिखी m। मीन्स ये x हो और ये 1 माइनस एक्स हो, तो ऐसे ये y हो, ये 1 माइनस y है, तो फर्स्ट वाले को हम लिखेंगे n, ये फर्स्ट वाला n, समझे, और ये 1 माइनस y, इसका फर्स्ट वाला m, तो पहला n, दूसरा m, और लेफ्ट साइड से क्या चला आ रहा है, बीटा mn। इसका मतलब बीटा mn और बीटा nm बोथ हैव सेम वैल्यूज, सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो आगे से ध्यान रखेंगे, mn को nm लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रूफ। क्या किया हमने इसमें, 1 माइनस एक्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, और जो x है वो 1 माइनस बन गया। तो देखो 1 माइनस एक्स वाई, और जो x है वो 1 माइनस वाई हो गया। तो लिखने का प्रॉपर तरीका आपको पता होना चाहिए, दैट x टू द पावर जो है उसे पहले लिखना है, एंड 1 माइनस एक्स टू दी पावर है उसे बाद में। सिमिलर टू दैट ये y सिंगल जो है उसकी पावर है उसे पहले लिखो, और 1 माइनस वाई जो पावर है उसे बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन पढ़ेंगे। क्या लिखा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर का मतलब देखो, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है, आइदर द लिमिट इज इंफिनिटी और द फंक्शन बिकम्स इंफिनिटी आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एनी वन ऑफ द लिमिट। या तो लिमिट डायरेक्टली इंफिनिटी हो, या फिर फंक्शन में लिमिट रखने से फंक्शन इंफिनिटी हो जाए। तो बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि बीटा mn, इसमें इसकी जो लिमिट है वो इंफिनिटी बन जाएगी। तो ये डायरेक्टली आपको दिखाई देगा कि एनी वन ऑफ द लिमिट विल बिकम इंफिनिटी, देन
फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्रॉपर। ध्यान रखना इस बात का कि कभी भी इंफिनिटी लिमिट हो तो उसे इम्प्रॉपर बोलेंगे, राइट। तो कैसे शुरू होता है, ध्यान दो। वी हैव बीटा फंक्शन बीटा mn 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ बीटा फंक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखना है, ये वाला, ये आपको याद करना पड़ेगा टू प्रूव दिस पर्टिकुलर प्रूफ। और ये एग्जाम में काफी आ जाता है कि बीटा फंक्शन का ये फॉर्म भी है। कैसे लिखा है, ध्यान दो। x को y अपॉन 1 प्लस वाई कहना है, x को y अपॉन 1 प्लस वाई। दिस इज द स्पेशल substitution to convert this type of improper integral into the infinity type of improper integral। तो देखो इसके बाद आपको dx निकालना है। कैसे निकालेंगे dx? By differentiating the right hand side applying the quotient rule। इसमें quotient rule लगाओ। Denominator whole square y plus 1 whole square, y plus 1 as it is, derivative of y 1 माइनस आता है फिर y as it is and the derivative of denominator y का फिर से 1 हो जाएगा and overall derivative of y will be dy। इधर dx है तो उधर dy हो जाएगा। इसमें जस्ट कोशेंट रूल लगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, द डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, सिंप्लीफाई दैट, y से y कैंसिल, यहां पे 1 बचेगा और नीचे 1 y प्लस 1 का होल स्क्वायर है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy। ठीक है, ये x की जगह रखेंगे और ये dx की जगह। नाउ कम टू द लिमिट पॉइंट। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें इसी चीज को सीधा डायरेक्टली, देखो यहां वी आर मल्टीप्लाइंग दिस टर्म, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बिकम xy प्लस x एंड ऑन द राइट साइड y। और इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y को वन साइड करना पड़ेगा, xy माइनस y, या इसे उधर ले जाओ y माइनस xy। तो हम y की वैल्यू निकालेंगे x अपॉन 1 माइनस x। सिंपल है, नहीं आ रहा समझ? इसे हम इधर लेके जाते हैं, इसे हम इधर लेके जाते हैं, तो y माइनस xy एंड देन y कॉमन इज इक्वल टू x। तो फिर यहां y की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस x, x टेंड्स टू 0, जब x की लोअर लिमिट 0 होगी तो इसमें रखो 0, 0 अपॉन 1 माइनस 0 मतलब 0 अपॉन 1 0। अब x की वैल्यू 1, तो देखो 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। इस तरह से आपको इसकी वैल्यू का लिमिट को चेंज करना आना चाहिए। प्लीज सी इट वेरी केयरफुली वंस अगेन। द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू लर्न अबाउट दिस, x इक्वल टू y अपॉन 1, y अपॉन y प्लस 1, डिफरेंशिएट इट बाय अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल। y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 एज इट इज, y का 1 माइनस न्यूमरेटर y एज इट इज एंड देन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन y का अगेन 1। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ y से ये y कैंसिल हो जाएगा, तो 1 into dy, so simply you can write it dy upon y plus 1 whole square and then for the limit just multiply them, cross multiply, xy plus x is equal to y and then take this xy on the right hand side, so it will become y minus xy equal to x। ऐसे समझो, it will become x equal to y minus xy like this, and if you take the common y यहां से तो 1 minus x होगा, राइट साइड में y, घुमा दो उसे, फिर y की वैल्यू एंड देन फाइंड द लिमिट्स। लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 1 0, अपर लिमिट 1 रखेंगे, इफ यू पुट 1 देन 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, 1 माइनस 0 इंफिनिटी। सो द लिमिट 0 to 1 will become 0 to infinity। It means the simpler limit 0 to 1 convert हो जाएगी 0 to infinity पर, like this। Limit converts from 0 to infinity। This is the value of x, x to the power m minus 1 लिखा है ना यहाँ, देखो x to the power m minus 1, then we are replacing x by y upon 1 y plus 1। तो देखो सर यहाँ रखा y upon y plus 1 whole power m minus 1, 1 minus x, 1 minus this is the value of x, this is the value of x। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, तो हमने ये वैल्यू रख दी x की, whole power n minus 1 and this is the value of dx, dx की वैल्यू dy upon y plus 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, इसका अपॉन 1 ऐसे कंसीडर करो, फिर ये y प्लस 1 माइनस वाई अपॉन y प्लस 1, होल पावर n माइनस 1 है तो दोनों जगह n माइनस 1 सेपरेट कर दिया,
अगेन यू कैन सी y से y कैंसिल, तो यहां क्या होगा 1 to the power n minus 1 will same m1 होगा, y to the power n minus 1 dy upon y plus 1 की पावर 2, और जरा यहां से देखो, यहां से y plus 1 की पावर m minus 1, तो सब तो y plus 1 है ना नीचे. Can you collect the powers of y plus 1 like this? y plus 1 whole power m minus 1 n minus 1 plus 2. देखो m minus 1 n minus 1 plus 2. So minus 1 minus 2 और plus 2 cancel. So total power of y plus 1 will become m plus n, और ऊपर से क्या बचेगा just y to the power m minus 1, ये वाला. तो originally beta mn will be converted into improper integral 0 to infinity like this, y to the power m minus 1 upon 1 plus y whole power m plus n dy, या फिर आप इसको x के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे. क्या अगर y का x बनाएंगे तो dy का dx हो जाएगा. एक प्रॉपर्टी भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि फंक्शन 0 to a fx dx is equal to same limit 0 to a ft dt like this. So based upon this property you can convert y terms into x, क्योंकि प्रूफ में आपको x चाहिए, ये वाला x मांग रहा है तो कोई बात नहीं, x में कन्वर्ट कर दो उसे like this. तो ये सिंपल इस वाली टर्म को हमने x में बना के लिख दिया, y का x तो dy का dx हो जाएगा, सिंपल. So by the property of limit you can find this form of beta function which is improper form, means the limit of this integral is infinity. The limit of this integral is infinity. That's why we can say it directly, this is an improper integral. तो आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है x equal to y upon 1 y plus 1, और उसके बाद differentiation dx and then find the value of limits. Limit will be converted into 0 to infinity, and after some sort of simplification you can find this type of improper integral having the limit infinity. इसकी कुछ लिमिट हो जाएगी infinity. Simple? Okay. Now एक और थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शंस में. फॉर्म नंबर 2, बीटा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. देखो इसको भी ध्यान रखना, बीटा mn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2 sin to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta. कई बार इसको p और q की फॉर्म पे भी लिख लेते हैं. आई विल शो दैट आफ्टर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन. सो देखो इसका ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दो. बीटा mn, द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ बीटा फंक्शन इज this one 0 to infinity, oh sorry 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx. Then what to do? Just substitute x equal to sin square theta. ये substitution आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा जरूर, जब a minus x हो like this 1 minus x, then you have to substitute x equal to sin square theta and dx will be 2 sin theta cos theta. dx will be 2 sin theta cos theta. And now see the magic of limits. If x equal to 0 then sin theta is equal to 0, तो theta will be 0 क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है. If I put x equal to 1 here 1, then sin theta equal to 1 and 1 will be the value of sin pi by 2, तो theta क्या हो जाएगा pi by 2. So the limit 0 to 1 will be converted into 0 to pi by 2. 0 से 1 0 से pi by 2 बन जाएगी. अब आगे देखिए कैसे होगा. बीटा mn 0 to pi by 2, लिमिट देखो 0 से 1 0 से pi by 2. Now we are substituting the value x equal to sin square here whole power m minus 1. Okay, next 1 minus x means 1 minus sin square whole power n minus 1, and the value of dx this one 2 sin theta cos theta d theta, we are substituting this one here. ठीक है, ऐसे. उसके बाद साइन ध्यान दो, इधर होल स्क्वायर है ना, ये मल्टीप्लाई करेगा, दिस 2 पावर विल मल्टीप्लाई विद m minus 1 and it will become 2m minus 2. आगे देखो, ये 1 minus sin square will become cos square, बनेगा ऐसे cos square theta, और उसके जो होल स्क्वायर है दिस विल मल्टीप्लाई विद n minus 1, so it will become 2n minus 2. और आगे क्या लिखा है 2 sin theta cos theta. Now
साइन की 2m-2 और एक प्लस यहाँ है, तो एक कैंसिल होकर 2m-1 नहीं बचेगा। नेक्स्ट 2n-2 और एक यहाँ है, तो 2n-1 नहीं बचेगा। सो दिस इज द सिंपल डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बीटा फंक्शन का एक रूप ये भी है, इसमें यहाँ पर 2 लिखा है, 0 to π/2 sin 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा d थीटा। दिस इज कॉल्ड बीटा फंक्शन फॉर्म नंबर 2। तो कुछ फॉर्म्स हैं, जो एक मैंने आपको ये पहले वाली दिखाई, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to infinity algebraic, and this one is trigonometric form 0 to π/2 with 2, okay, with 2 sin to the power 2m-1 theta cos to the power 2n-1 theta d theta। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बताओ जल्दी से। अब थोड़ा सा मैं बेसिक सिखाता हूं आपको गामा फंक्शन के बारे में। किसके? गामा फंक्शन के बारे में हम बेसिक सीखेंगे। बीटा फंक्शन का बेसिक हो गया है, गामा फंक्शन का बेसिक क्या है ये देखो। टॉपिक नंबर 3 गामा फंक्शन। ये लेक्चर में बेसिक लेक्चर बना रहा हूं, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दीज टॉपिक्स। गामा फंक्शंस, गामा इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ये गामा, कैपिटल गामा कहते हैं इसको। सो द इंटीग्रल of this type 0 to infinity e to the power minus x to the power minus 1, ध्यान रहे लिमिट 0 to infinity है और e to the power minus सिंगल x होना चाहिए, e to the power minus सिंगल x, this one। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लो इसको आगे तक के लिए। e to the power minus सिंगल वेरिएबल लीनियर फंक्शन ऑफ x, सिंगल वेरिएबल 1, एक पावर होनी चाहिए x की पावर 1, एंड देन x to the power जो भी है n-1 से कंपेयर करेंगे, then this type of integral is called gamma function। This is defined as gamma function and is denoted like this, gamma n। So gamma n will be written in this way, in this format you can see here, limit 0 to infinity e to the power minus x, e to the power minus x। ये देखो इसके अंदर बस इस बात का ध्यान रखना, ये सिंगल x होता है, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल, एंड देन x टू द पावर को कंपेयर करना है n-1 से, n ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। देन दिस इंटीग्रल इज आल्सो नोन एज सेकंड ऑयलरियंस इंटीग्रल या यूलरियन इंटीग्रल्स, ठीक है। तो ऑयलर्स की ये थ्योरम्स हैं, सेकंड थ्योरम है, सेकंड इंटीग्रल कहलाता है गामा फंक्शन। इसके ऊपर भी बेस्ड थोड़े से मैं आपको सिंप्लीफाइड टर्म्स आपको समझा देता हूं, जरा इसको सीख लो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, जो आपको यहां समझनी चाहिए। क्या है इसके जरा ध्यान से देखो। देखो जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, गामा 1 इज इक्वल टू 1। गामा 1 कभी आएगा तो सिंपली इज इक्वल टू 1। कैसे लिखेंगे? गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n-1 dx। n को अगर 1 रखा हमने, n को 1 यहां, तो यहां गामा 1 हो जाएगा। ऑन द राइट हैंड साइड 1 minus 1 x to the power 0, then the only function remaining will be e to the power minus x, सिर्फ वही तो बचेगा। and then you can integrate e to the power minus x as e to the power minus x upon coefficient -1 and limit 0 to infinity, upper limit e to the power minus infinity minus lower limit e to the power 0 and in the denominator -1। e to the power 0 1 होता है, e to the power minus infinity 0 होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये 0 होगा और ये 1 होगा, सिंपल। सो फाइनली यू विल गेट दिस गामा n, गामा 1 इज इक्वल टू 1, गामा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिंपल। एक और देखो, यस, प्रॉपर्टी नंबर 2, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। मतलब जब कभी गामा खुलेगा तो एक कम हो जाएगा, जैसे n+1 गामा लिखा है तो एक कम हो गया n, और सेम गामा उसके गामा के अंदर लिखा जाएगा, सेम नंबर इन द गामा। ध्यान देना, वी हैव गामा फंक्शन गामा n। इसको गामा n क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज लिमिट 0 टू इंफिनिटी है और e टू द पावर माइनस x है, लिमिट 0 टू इंफिनिटी है और e टू द पावर माइनस x है। देन x टू द पावर में जो ये लिखा है, ये वाला x टू दी पावर में ये वाला, इसकी वजह से इसको हम गामा n बोल रहे हैं, इसकी वजह से इसे गामा n बोला जा रहा है। ये समझ में आया? बताओ, ये गामा n इसकी वजह से, e टू दी पावर माइनस x और x की पावर में n लिखा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट गामा n। अगर हम n को
n+1 से रिप्लेस कर दें, ध्यान दीजिए, if we replace n by n+1 then it will become gamma n+1. On the right hand side there will be only one change. If we are replacing this n by n+1 then -1, n+1 -1 will become just n. n+1 -1 कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, सिंपल. उसके बाद अब इसमें हम बाय पार्ट रूल लगाते हैं. इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड मानते हैं. फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर n एज इट इज, सेकंड का होता है इंटीग्रेशन, यूवी रूल होता है ना बाय पार्ट, वही x टू द पावर n एज इट इज, e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन, देन e टू द पावर माइनस x अपॉन -1. लिमिट 0 टू इंफिनिटी सेपरेट कर दो इसकी अलग. माइनस इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन, लिमिट अलग कर दी 0 टू इंफिनिटी. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन n x टू द पावर n -1, एंड इसको हम एज इट इज छाप देते हैं, ये e टू द पावर माइनस x अपॉन -1, सिंपल ऐसे. नाउ इसको देखो, विद द हेल्प ऑफ अपर लिमिट e टू द पावर माइनस इंफिनिटी विल बिकम 0. अपर लिमिट से e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0, माइनस लोअर लिमिट से x को 0 करेंगे तो 0, x को 0 करेंगे तो 0. बोलो समझे कुछ? x को 0 किया तो 0, ठीक है. यानी दोनों लिमिट अपर और लोअर से 0 हो गया. अपर से e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 एंड लोअर से x 0 की वजह से 0. अपर e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 और लोअर x 0 से 0. समझ गए ना? आगे देखो, माइनस माइनस प्लस, n आउट ऑफ द इंटीग्रल, and then 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x. And what is this? This is your equation number 1 actually. e to the power minus x, x to the power n minus 1. इसी को तो आप gamma n लिख सकते हो ना. तो using equation number 1 you can see here this is n as it is, and this complete integral 0 to infinity e to the power minus x with x to the power n minus 1 will become gamma n. तो gamma n plus 1 will be reduced to 1 less like n and then gamma n. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी गामा एक्सपेंड होगा तो एक वैल्यू कम होकर होगा, जैसे n प्लस 1 से एक कम है, और फिर n और सेम गामा n, ठीक है. सो लाइक दिस. अब इसके ऊपर बेस्ड ये थोड़े से एक्सपेंशन समझ लीजिए. कैसे? देखो ऐसे, क्या लिखा है यहां पर? n प्लस 1 and gamma n. सो बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट, इफ दिस n gamma n, अगर हम इसका एक्सपेंड करेंगे तो एक कम होके खुलेगा, मींस इसका एक कम होगा तो क्या लिखेंगे आप? n माइनस 1. एंड सेम गामा के अंदर जैसे लिखा ना, एक कम होकर, इसका एक कम क्या हुआ? n, इसका एक कम n हो गया, और सेम इसके अंदर लिखा है तो इसका भी एक कम करेंगे n माइनस 1, और फिर देखो सेम इसके अंदर आगे n माइनस 1 एज इट इज. इफ वी राइट दिस n माइनस 1 तो ये एक कम हुआ, और फिर देखो एक कम सेम उसके अंदर, और फिर सिमिलरली n माइनस 2 का एक्सपेंड करेंगे तो ये हुआ n माइनस 3, और फिर देखो आगे सेम एज इट इज. बात समझ में आई? ऐसे, और इस तरह से आप इसका एक्सपेंशन करते चले जाएंगे, यानी गामा n प्लस 1 का एक एक कम करते जाइए, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन. बात समझ में आई? तो इस तरह से हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं. देखो एक प्रॉपर्टी और है, इसे और समझो. रिलेशन बिटवीन गामा एंड फैक्टोरियल. देखो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. द रेशो gamma n plus 1 is equal to n factorial exists only for positive integers. Number one thing, because we can find the factorial of only for positive integers. Positive integers का factorial possible होता है और किसी का नहीं होगा, negative का नहीं होगा, fraction का नहीं होगा, factorial. But gamma हो सकता है, but we are just finding this relation gamma n plus 1 equal to n factorial exists only for positive integer. ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे लिखा है गामा 5 तो एक कम करके खोलेंगे 4 3 2 1. तो ये 4 3 2 1 क्या है? 4 फैक्टोरियल नहीं है? आ रहा है वो समझ? 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 ये 4 फैक्टोरियल है. ऐसे ऐसे आप इसको देखो 7 को, जब आप 7 को एक्सपेंड करेंगे, 7 को एक्सपेंड करेंगे तो देखो जरा क्या होगा.
7 गामा 6 5 4 3 2 1 यानी 6 फैक्टोरियल हो गया. इट मीन्स यू कैन से that gamma n plus 1 is equal to n factorial. Gamma n plus 1 is equal to n factorial. So for the integral value of n, we can write gamma n plus 1 equal to n factorial. एक कम होकर खुलना है. n को लिखेंगे, n को तो क्या कहेंगे? gamma n is equal to n minus 1 factorial. n minus 1 एक कम होगा n minus 2 factorial and so on. तो एक तरह से ये हमारा रिलेशन बन गया गामा के लिए. ठीक है. तो अब आपको मैंने थोड़ी सी छोटी सी बातें समझा दी कि किस तरह से हम इनकी वैल्यूज को रिड्यूस कर रहे होंगे, है ना, एक्सपेंशन ऑफ गामा फंक्शंस. बाकी इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं. दिस इज ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 120, है ना. ठीक है, समझ में आ गया? ओके. तो अभी मैंने बीटा फंक्शन गामा फंक्शन का आपको ये सिंपल सा एक फॉर्मूला समझा दिया है. एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर, जो इसका वेरिफिकेशन या प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझ लो. यस, द फर्स्ट ऑयलरियन इंटीग्रल या यूलरियन इंटीग्रल बीटा mn इज कॉल्ड बीटा फंक्शन. तो इसका आंसर आप याद करेंगे 0 to 1 होना चाहिए, x to the power m-1 हो और 1 minus x की पावर n-1 हो. इसे बीटा फंक्शन कहते हैं. दूसरा ये गामा फंक्शन 0 to infinity हो लिमिट, e to the power -x सिंगल हो और x to the power n-1 हो. और एक मैं ये ओरिजिनल फॉर्मूला जो आपको बता रहा हूं अभी, 0 to pi/2 sin to the power 2m-1 theta cos to the power 2n-1 theta d theta gamma n upon 2 gamma m plus n. तो इसका प्रूफ भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा. अभी के लिए बस ये आज के 3 फॉर्मूले आप याद करके जाओ, और जो मैंने प्रूफ आपको समझाए हैं प्लीज उनको एक बार देख लीजिए, है ना. आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में किया तो खराब हो जाएगा पूरा का पूरा. इसकी लेक्चर की जो पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी. आप अपने नंबर से इस पर लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सोशल मीडिया लिंक्स है जहाँ पर रेगुलर लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहती है. अगर कोई डाउट्स है तो इस नंबर पर पूछ सकते हैं. और डिफरेंट यूपीएससी आईएएस के एग्जाम्स के लिए अगर आपको पढ़ना है, गेट एग्जाम के लिए पढ़ना है, या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए हायर मैथमेटिक्स को पढ़ना है, तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.